اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، یعنی کہ خالق سے، خالق کے بندے جو ہیں جو اس نے تخلیق دیے ہیں وہ خالق کے بارے میں پوچھ رہے ہیں بھیجے ہوئے رسول سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ رب خالق کہاں ہے جس کے لیے ہم یہ قربانی دے رہے ہیں، دن کو بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں اور رات میں قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح کی فارم میں آج ہمارے یہاں پر نظر آتی ہے۔ تو یہ ساری جو جدوجہد کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں، وہ ہستی کہاں ہے؟ وہ ہمیں دیکھ رہی ہے یا نہیں، سن رہی ہے یا نہیں؟ انسان کے دل میں ایک سوال، ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں نے جس کی خاطر یہ تکلیف جھیلی ہے، یہ پریشانی برداشت کی ہے، کیا اس کو بھی خبر ہے یا نہیں؟ اسی وجہ سے یہ آیت جو ہے یہ قرآن کے روزوں کو ذکر کرتے ہوئے یہ بیچ میں آ گئی ہے یہاں پر کہ جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو پھر ان سے کہو فَإِنِّي قریب، میں بالکل قریب ہوں، یہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب کہ اللہ تعالیٰ تو عرش پر مستوی ہے، تو وہ بھی قرآن مجید کا ہی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس قسم کی متشابہ آیات جو ہیں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں، اس کو ایز اٹ از ایکسپٹ کر لینا ہی صحیح ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اس کو تو ڈیفائن کیا ہی نہیں جا سکتا ہمارے اپنے اس کم ذہن کے ساتھ۔ تو بالکل ویسے ہی مانا جائے گا جس طریقے سے قرآن مجید میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ، اپنی آنکھوں کے ساتھ جس طریقے سے چاہ رہا ہے ہمیں دیکھ رہا ہے اور جانچ رہا ہے، ہمارے لیے حجت تمام کر رہا ہے۔ انسان جو جس وقت جیسا کر رہا ہوتا ہے اللہ کے علم میں بخوبی ہوتا ہے، خوب علم ہے۔ اب یہاں پر بظاہر اگر دیکھا جائے تو انسان کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو آپ علیہ السلام یہ بھی جواب دے سکتے تھے وہاں پر کہ مجھ سے رابطہ کرو، میں اللہ تعالیٰ تک کانٹیکٹ کروا دوں۔ جیسے آج کے ٹائم میں جو حاضرین جو مطلب حضرات صاحب ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے کہتے ہیں نا کہ آپ مجھے اپنا بڑا مانو، بس پھر اس کے بعد اللہ سے بخشوانے کی ذمہ داری میری ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کو بتاؤ کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں، بیچ میں کسی بھی وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ کو اپنی حاجت بتانے کے لیے کسی دوسری ہستی کو بیچ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں بتائی یہاں پر۔ یہ تو ہمارے اپنے بہانے ہوتے ہیں نا کہ ہم کسی کو بیچ میں ڈالیں گے، سیڑھی بنائیں گے، سیڑھی کے ساتھ پھر آسمان پہ چڑھیں گے۔ یہ سیڑھی سے چھت پہ چڑھنے کا جو مثال دی جاتی ہے، یہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان مثال بتانا ظلم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آگے جی وہ میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سن لیتا ہوں، دعوت الداعی، ہر پکارنے والے کی پکار کو، چاہے وہ ایک دفعہ بھی پکارتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سن رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اتنا نافرمان تھا، 99 قتل کر چکا تھا، اب اس کی معافی کا، اب اس کی پکار کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اجیبو، میں جواب دیتا ہوں۔ جواب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ صرف سننا کافی نہیں ہوتا، جواب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مسئلہ حل ہو جانا، وہ ہوتا ہے جواب۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارے۔ اذا کا بعض اوقات ترجمہ اگر بھی کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں پر بھی اردو میں اگر اور جب، یہ دو لفظ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے انٹرپریٹیشن یوز کیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی باریکی میں اگر دیکھا جائے تو اگر کے اندر شک ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے، ڈاؤٹ فل بات ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہم کھانا بنا رہے ہیں، اگر مہمان آئیں گے تو وہ بھی کھا لیں گے، اگر میں ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ لیکن جب، یہ جب کا لفظ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، اس میں یقین ہوتا ہے کہ آنے والا آئے گا، اور کب آئے گا اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے، آنے کا وقت مقرر معلوم نہیں ہے۔ یہاں پر بھی وہی چیز اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ وہ جب بھی پکارے، چاہے وہ ایک دفعہ پکارے یا وہ ہر لمحہ پکارے، میں ہی اس کی بات کا جواب دے رہا ہوں۔ کسی قبر پر جا کر پوچھنے کی، کسی مورتی کو سامنے رکھ کر تصور قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود انسان کے دل میں
बसा हुआ है अगर इंसान उस बसे हुए रब को अपने दिल में तलाश कर पाए। फिर आगे देखिए अल्लाह ताला शर्त भी लगा रहे हैं, फल यस्तजीबू ली, उनको भी तो फर्ज है कि वो मुझे ही पुकारे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सूरह फातिहा में हम एतराफ करते हैं ना कि या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें और तुझसे ही मदद चाहें। तो जब हम ये एतराफ कर रहे हैं कि इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की हो सकती है और मदद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही से मांगी जा सकती है, तो अल्लाह ताला यहाँ पर यही कह रहे हैं कि तुमको भी तो चाहिए ना कि तुम मुझे पुकारो, कब्र में जाने वालों को ना पुकारो, उनसे मदद मांगना शुरू ना कर दो, उनको अपना मुश्किल कुशा समझना ना शुरू कर दो। उनको भी देने वाला सब कुछ अल्लाह ही ताला है। अगर उनको नेक अमल की हिदायत मिली है वो भी अल्लाह की तौफीक से मिली है। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है फल यस्तजीबू ली, तुम्हें चाहिए कि तुम मुझे पुकारो, फल युमिनू बी, और मुझ पर ईमान लाओ, लअल्लहुम यरशुदून, ताकि तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ, ताकि तुम हिदायत पा जाओ, ताकि तुम कामयाबी के लिए सफर पर खड़े हो जाओ। ये मामला है कि ईमान लाना है और अल्लाह ही को पुकारना है, और ये वक्त के पैगंबर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम फरमा रहे हैं। अब इसके बाद जो आयत आ रही है उसको आज इंशाल्लाह ऑनवर्ड स्टार्ट करने का इरादा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं उहिल्लु लकुम लैलतस सियामिर रफतु इलन निसाइकुम, आप तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है रोज़ों की रातों में अपनी बीवियों के साथ इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम करना। अब ये जो आयत है इसके कॉन्टेक्स्ट में एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में 2 ग्रुप बन गए थे असहाब के, कि उनके दरमियान में मतलब एक ग्रुप तो ऐसा था जो दिन के वक्त रोज़ा रखता था और रमज़ान की रातों में भी वो अपनी बीवियों से दूर रहा करते थे, इस गुमान के साथ कि चूंकि ये पूरा महीना ही रमज़ान का है तो दिन में भी हमें परहेज़ करने का हुक्म दिया गया है, लिहाजा रात में भी उस परहेज़ का एहतमाम किया जाएगा। अच्छा, और दूसरा ग्रुप था सहाबा कराम में, वो क्या किया करते थे कि दिन में तो रोज़ा रखा हुआ है, तो खाने-पीने और बीवियों से दूर हैं, लेकिन रात के वक़्त जब रोज़ा अफ्तार कर लिया है, तो रात के वक़्त वो अपनी बीवियों से इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम कर लिया करते थे। और वो ये गुमान किया करते थे, जिस हद तक उनका गुमान ठीक भी था, कि चूँकि रोज़ा अफ्तार हो चुका है, तो अब लिहाज़ा ये वाली पाबंदी भी हमसे उठ गई। रात में वो अपनी बीवियों के पास चले जाया करते थे, लेकिन दिल में उनके खौफ आता था कि हुक्म तो नहीं आया है, आगे उसका ज़िक्र आ जाएगा। कहीं हम ये गलत ही ना कर रहे हों, जब तक हुक्म नहीं आया है तो अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया है तो पता नहीं हम ये ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो उसके लिए आगे अल्लाह ताला ने बता दिया कि हुन्ना लिबासुल लकुम, वो तुम्हारे लिबास हैं, जो स्पाउस होते हैं आपस में, मियाँ बीवी के लिए और बीवी मियाँ के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए लिबास का काम करते हैं। लिबास का काम होता है ऐब को छुपाना, खूबसूरत चीज़ों को छुपाना, फटी हुई जो इज़्ज़त है उसको भी छुपाना, उछालना नहीं होता। आज के टाइम में ज़्यादातर यही नज़र आ रहा है। तो उससे ये इस चीज़ से भी हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि अल्लाह ताला तो हमारे स्पाउस को हमारे लिबास से तशबीह दे रहे हैं, और लिबास इंसान को खूबसूरत दिखाने के लिए, उसकी बुराइयों को ढाँपने का काम करता है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारे लिबास हैं और तुम उनके लिबास हो। तो एक दूसरे को जो उनकी खामियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, उसको छुपाने का काम करो और इस्लाह करने की कोशिश करो और खूबसूरती को उभारने की कोशिश करो। फिर आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून, अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लाह ने जांच लिया। अब अलिमल्लाहु, अल्लाह ताला जान गया, यहाँ पर तो ये तर्जुमा किया जाएगा ना लफ्जी, लेकिन अल्लाह के लिए इल्म के एतबार से जब भी कभी बात होगी तो वहां पर अल्लाह के इल्म में तो पहले ही सब कुछ है ना। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह ताला ने जान लिया, अल्लाह ताला को इल्म हो गया, नहीं, बल्कि ये मामला इस तरीके से होता है कि अल्लाह ने जांच लिया, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने उसकी परख बता दी, जांच पड़ताल हो गई तुम्हारे अपने इल्म के मुताबिक कि तुम अपने जी में खयानत किया करते थे, अनफुसकुम, तुम अपने जी में इस चीज का खौफ महसूस किया करते थे कि हम जो ये अमल कर रहे हैं कहीं इसके अंदर गुनाह ही ना मिल जाए हमको। तो ये डर भी था, और ईमान वाले होते हैं वो फूक फूक का कदम रख रहे होते हैं। जो अभी नया नया ईमान की तरफ आ रहा होता है वो बड़ा एहतियात कर रहा होता है हर मामले में कि मैं अपनी बुराइयों को ख़त्म करके अच्छाइयों को अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो कहीं इसके अंदर कोई कोताही ना हो जाए। तो तुम अपने जी में खयानत महसूस किया करते थे, तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं फताबा अलैकुम, अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ रुजू फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हुआ, और क्या, वागफा अन्कुम, और तुम्हारी जो पिछली कोताहियां थी उनसे दरगुजर कर दिया, तुम्हें माफ कर दिया, तुम्हारे लिए रियायत कर दी, आसानी पैदा कर दी। आसानी क्या, अब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल कर दी कि ठीक है, रातों में अपनी बीवियों के साथ ताल्लुक कायम किया जा सकता है। फिर आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं फल आन फल आना बाशिरुहुन्ना फबतगू, अब आओ अपनी बीवियों के पास अज़दवाजी ताल्लुक कायम करने के लिए और तलाश करो मा कतबल्लाहु लकुम, जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। क्या लिख दिया है? नेक वाले औलाद, तो उसको अल्लाह ताला के हुजूर तलब करो। और फिर कहा जा रहा है वकुलू, और खाओ, वशरबू, और पियो। मतलब रोजा खोलने के बाद जिस तरीके से खाने पीने की इजाजत दे दी गई है, इसी तरीके से बीवियों के पास जाने की भी इजाजत दे दी गई है। और अब जब ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला से वो तलाश करो जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रखा है, जो लिख दिया है, जो मुकद्दर कर दिया गया है कि ये औलाद मिलनी है, इस नेचर की, इस तरह नेक्स वाले औलाद होगी, वो अल्लाह ताला से तलब करो। हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयद, यहाँ तक के, मतलब खाओ पियो जब तक के स्याह धारी सफेद धारी से वाजे ना हो जाए, मिनल खैतिल असवदी मिनल फज्र, फज्र के वक्त तक। अब ये जो आयत है इसके बड़ा मतलब एतराज़ात, इख्तिलाफात इसमें उठाए जाते हैं कि सफ़ेद धारी स्याह धारी से वाजे नुमाया हो जाना, ये आज के टाइम में इसको कैसे समझा जाएगा? तो इसके कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस मुबारका है। अदी इब्न हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये आयत सुनी, तो उसके बाद उन्होंने अपने तकिए के नीचे एक काले रंग का और एक सफ़ेद रंग का धागा जो था, वो अपने तकिए के नीचे रखकर सो गए, और रात में वो उसको चेक करते रहते थे, निकाल के देखते थे कि स्याही और सफ़ेदी जो है वो वाज़े मुमताज़ नज़र आ रही है। और फिर जब वो वाज़े उनको अपनी आँखों से नज़र आना शुरू हो गई, तो फिर उसके बाद उन्होंने खाना-पीना रोक दिया, यानी कि सहरी जो थी उसका वक़्त उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन ये जब वाक़या अदी इब्न हातिम का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर पेश हुआ, तो आप अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, और आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि अदी इब्न हातिम, तुम्हारा तकिया इतना बड़ा है कि आसमान के डोरों को सँभाल लेता है? तो उससे ये बात समझ में आती है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये इन धागों की बात नहीं हो रही है जिसको हम यहाँ पर सियाह और सफ़ेद रंग का रंग लेते हैं, बल्कि ये आसमान के धागों की, आसमान की स्याही और सफ़ेदी के अंदर जो एक बारीक सी लाइन रहती है, उसके बारे में ज़िक्र किया जा रहा है। एक होती है जो सुबह काज़िब, यानी कि झूठी सुबह, वो सुबह काज़िब जो होती है, वो होता है सहरी करने का आगाज़, उसमें सहरी की जाएगी। और एक होती है सुबह सादिक, जिसको फजर भी कहते हैं, उसका मतलब होता है कि सच्ची सुबह, सुबह सादिक कहते हैं उसको। तो जब सुबह सादिक हो जाएगी, यानी कि सच्ची सुबह, फजर का वक्त आ जाएगा, यानी कि रोशनी आसमान पर एक धारी की शक्ल में नजर आना शुरू हो जाएगी, जो सूरज की टिकिया है वो नमदार होने के लिए शुरू हो जाएगी। अब वहां पर अफ्तारी करने, सहरी करने के अमल को रोक दिया जाएगा। ये है मुराद इससे कि फजर तक खाते पीते रहो, यानी कि सहरी करो जब तक के स्याह धारी सफेद धारी से नुमाया ना हो जाए, यानी कि सफेद धारी जब मुमताज हो जाएगी ना, तो फिर खाने पीने को रोक दिया जाएगा।